Good morning, students. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Good morning. All right. Last lecture में हमने क्या देखा था? Last lecture में we have seen the concept of query string and URL encoding. That too with the help of theory as well as with practical example. Right? We have seen what is the importance of query string. That if we want to pass value from one page to another, we can use query string concept, and it is also client-side state management technique. And if there are some characters within the URL which are special characters for the browser, then they can be replaced with other characters. They can be mapped with other characters which have predefined meaning within the browser with the help of URL encoding and decoding. All right. So today we will see the data controls, and for that I have already created one website, that is Data Controls EX, right? I have already created one website, that is Data Controls EX. As I have created empty website, so right now there is only one file within the website, that is web.config file. Now first of all, let's create the database. So if I want to add database in my website, what I will do, within Solution Explorer, I will right click on the website, add new item. Within the list, I will add SQL Server database. It's over here, right? Within the list, I will add SQL Server database. I will change its name. Let's change it as DB1, and I will click on add button, right? So as soon as I click on add button, it will ask me that whether I want to add my database within app_data folder. Obviously, I will click on yes, because as it is making structure for my website, as ASP.NET itself is making structure for my website. So obviously I will click on yes, right? So it will take some time to create the database, and we will able to see our database within Server Explorer. All right, as you can see within Solution Explorer, within app_data folder, there is our database, that is db1.mdf. And within Server Explorer, we are able to see the database and different types of entities which we can create within this database. All right, now let's add tables within this database, right? So first table I want to add. So what I will do, I will right click on tables option within our database in Server Explorer, and I will select the option add new table, right? All right. So it is giving me the wizard through which I can add the columns within my table. So first table I want to create for department. So I will give the fields as DEPTNO. Obviously, it will be of integer data type. After that, I will give it as DEPT name. It will be of varchar data type, varchar 50. And last will be location. Again, it will be of varchar 50, right? I will set DEPTNO as primary key. And after that, I will save the table. The name of the table that I will give is TBL DEPT, right? And I will click on OK. So first table, that is TBL DEPT, is created within our database. Now let's do one thing. We will create another table. So again, right click on the tables option, add new table. Second table I want to create, that is for employee details. So I will give the fields as EMPNO, integer, EMP name, varchar 50. Then I will give it as salary, obviously numeric. And last will be DEPTNO, as I want to provide relationship between the two tables, that is one for DEPT and another is for employee. So the last field that I will add within my employee table is DEPTNO. I will set this employee number as primary key, and I will save my table as TBL employee.
I have given the name of the table as TBL employee and I am clicking on OK button. So second table is also created, right? Now I will add third table. So again the same procedure, right click on the tables option within db1.mdf database within Server Explorer. I will select add new table option. After that I will specify columns. Third table I want to create is for users. So fields will be UID, integer, uname, varchar, city, varchar, and last field is image path. Obviously it will be also varchar as I want to store the path for the image. Within this table again UID will be the primary key and I will save the table. The name of the table that I will give is TBL user, right? The name of the table I have given is TBL user and I will click on OK. So third table is also created within my database. You are able to see within the list of tables that is TBL DEPT, TBL employee and TBL users. Now one more thing we will do is we will also add records within these tables. So first let's start with TBL DEPT. If I want to add record directly within the table, what I need to do, I will right click on that particular table that is TBL DEPT and I will select the option show table data, right? As soon as I will select the option show table data, it has provided me the wizard through which I can add record within this particular table. So obviously I will add 2 to 3 records, that is for example 10, department number, sales department, location, let's take it as Surat. Second record is 20, let's take it as manufacturing department. Let's have it Valsad. And third record we will take it for, let's take it admin and it is also at Surat, right? Now see over here, as you are able to see red color mark over here, it means this record is not being saved, right? अगर आपको आपकी डेटाबेस के टेबल में ऐसे रेड कलर के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है. Obviously we will click on tab key, so the red color marks has been gone, means now this record has been saved within our table. So we will close this table. We will add records within TBL employee table. So for that, obviously again right click on the TBL employee table, show table data option, right? Within this option it has provided me the wizard. Again records I am adding for employee, that is one employee number, employee name, let's take it as for example Nikisha Jariwala. Let's take its salary as for example 60,000. Department number, let's take it as 30. Second, let's take it as for example CRs, that is Dhruvi Daura, right? Salary, let's take it as 50,000. Department will be sales department. Third record, let's take it as Riddhi, right? Let's take its salary again as 50,000, department number 10. Then fourth record is Karishma. Let's take its salary as again 50,000. Department number, let's take it as 20. Fifth, Urvashi. I think her surname is Urvashi Patel. Right? So again, let's take its salary as for example 52,000. And for manufacturing department, right? So we have added 5 records within our TBL employee table. All the records has been saved because we are not able to see that red color exclamation mark. So we will close the table. Now we want to add records within the third table, that is TBL user, right?
But the thing is that within this table, we need to add the image path, and still we don't have any image within our website. So the first thing that we need to do is we need to add images within our website folder, right? Again, I repeat, what we need to do, we need to add images within our website folder. So for that purpose, what I will do, I will move on to the folder where I have the images, right? It is within examples folder, and within examples folder, I have images folder, right? So what I will do, right? See over here, there are some images present within this images folder. So I will copy this images folder and I will paste this images folder within my data controls EX website folder. Again, I repeat, I have copied this images folder and I will paste it in data controls EX, which is the name of our website. I will open that folder and I will paste it within it, right? So now the thing is that I have images folder within my directory of data control CX. I want that images folder within my solution explorer. So what I will do, I will right click on the website and I will select the option refresh folder, right? As soon as I have done refresh, now I am able to see images folder within my website folder within solution explorer, and you are also able to see images which are present within this images folder. All right, so now we can use these images. So first record will be UID will be 1, username, let's take it as, for example, another students from TY, let's take it as Shreya, right? City is Surat. Image path over here, we need to consider that we need to assign over here, that is relative path. And within ASP.NET, relative path starts with tilde sign, because in ASP.NET tilde sign is considered as a current folder, that is our website folder, and our website folder is data controls EX, right? That is tilde sign slash images, that is the name of the folder for our images, and the first image is, let's take it as hotel1.jpg, which is present in our images folder, hotel1.jpg. Let's add second record, that is UID is 2, another username, let's take it as Rutva, right? City, let's take it as Vapi. So again, the path will be tilde sign slash images slash second images hotel2.jpg. Third user, let's take it as from, we will take it as, for example, Mittal, right? Again, we will take it as Surat, tilde sign slash images slash hotel3.jpg. Right, so we have added 3 users within our TBL user table. Now I will close this table. Now what is the scenario? I have created the database tables and I have also added the columns. After creating the table with primary key, I have added records within those tables. So now the second task that we need to do is we need to create pages for our website. So let's start. We need to create total 10 pages, right? So let's start. I will right click on my website within Solution Explorer, add new item. First option that I will select is web forms. The first page will remain as it is. The name of the page will remain as it is, that is default.aspx, right? And after that, I will click on add button. So the first page is created, that is default.aspx. We will able to see its source view, right? Now let's create the second page. So again, right click on the website, add new item. First option is by default selected. I will give the name of the page as employee details .aspx. I will click on add. So the second page is created. Again, right click on the website, add new item. Third page that I will create is insert
dpt.aspx. I will click on add. So third page is created. Again, right click on the website, add new item. Fourth page that I will create is dpt details.aspx. I will click on add. Fifth page that I will create is, first option is by default selected. The name of the page we will give it as dpt.emp.aspx. I will click on add. Another page that is, let's take it as employee.info.aspx. That is employee.info.aspx. I will click on add. Next page that I will create is, let's take it as user.info.aspx. I will click on add. Another page is, let's take it as user.details.aspx. User.details.aspx. Add. Next page I will create it as get.emp.aspx. I will click on add. And the last page that I will create is emplist.aspx. emplist.aspx, and I will click on add. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, we have created 10 pages within our website. All right, we will create design for all the pages. Let's close all the pages. All right, now this is default.aspx page, which I will consider the first page within my website, right? मैं जब भी ये वेबसाइट रन करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, तो मुझे फर्स्ट पेज दैट आई वांट टू डिस्प्ले विद इन द ब्राउजर इज default.aspx. So within div, I will link all the pages with this particular page. मुझे क्या करना है, सारे जो दूसरे पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं उसको ये default.aspx के साथ कनेक्ट करना है, ताकि मैं एक ही पेज पहले रन करूंगी दैट इज default.aspx, और उसके ऊपर से मैं बाकी सारे पेजेस को ओपन कर सकती हूँ. मुझे ऐसा क्रिएट करना है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हाइपरलिंक कंट्रोल का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज हाइपरलिंक कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज अ नेविगेशन कंट्रोल. सो div टैग के अंदर मैंने कर्सर रखा, हाइपरलिंक कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया. Within property window, right, I will set two properties. That is, first is I will set it as text property, and I will write it as employee records, right? And second important property that I need to set is navigate URL. So navigate URL property को मैं open करूंगी, और उसके साथ I will attach employee details.aspx page. It's over here. See, employee details.aspx page, and I will click on OK, right? So as you are able to see, hyperlink is created over here. Now second hyperlink I will add. Move on to the text property. I will set text property as department info, right? And navigate URL property, I will set it as insert dpt.aspx. It's over here, right? Insert dpt.aspx, and I will click on OK. Next, again I will add hyperlink. I will move on to the text property, and I will write it as get employees, right? And within navigate URL property, I will set get emp.aspx page, right? And I will click on OK. So this is the third hyperlink. Next hyperlink I will edit for user info. No, first we will add for department and employee. So I will write over here department employee, right, within text property, and within navigate URL property I will set the page that is dpt.emp.aspx. Again I repeat, dpt.emp.aspx, and I will click on OK. Next hyperlink I will add
and I will set text property as user info. Navigate URL property, I will set it as userinfo.aspx page, and I will click on OK. Next, again hyperlink I will add. Text property, I will set it as user details, right? Navigate URL property, I will set it as user details.aspx page. I will click on OK. Again, and the last hyperlink I will add it for employee list. So within text property, I will write it as employee list, right? And within navigate URL property, I will set it as emplist.aspx, right? So I think we have added 7 hyperlinks to connect 7 pages with this default page. Another pages we will use to connect with some of the pages within this hyperlink, right? दूसरे जो एक दो पेजेस बाकी है वो हम ये जो हाइपरलिंक के साथ जो कनेक्ट किए हुए पेजेस है उसके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, राइट? सो जब भी ये वेबसाइट एग्जीक्यूट होगी default.aspx पेज डिस्प्ले होगा और default.aspx पेज के साथ हमने बाकी सारे आई थिंक 7 पेजेस को हमने कनेक्ट कर दिया है, राइट? ऑलराइट, so the task for default.aspx page is completed over here. So what we will do, we will close this page. हम इसको close करते हैं. And the first page that we will design is employee details.aspx page, because default.aspx page के अंदर first link जो हमने place की थी that is for employee details page. So I will open employee details page, move on to design. Now what I want to do, whenever this page is open, मुझे employee की details यहाँ पे display करनी है. Again I repeat, मुझे यहाँ पे employee की details display करनी है. So for that purpose, I will use form view control from data tab of my toolbox. Again I repeat, first control that we will see over here is form view control. राइट, सो डेटा टैब में से टूल बॉक्स में आपको डेटा टैब मिलेगा, डेटा टैब में आपको फॉर्म व्यू कंट्रोल मिलेगा, राइट? आई विल प्लेस दैट फॉर्म व्यू कंट्रोल ओवर हियर, राइट? सी ओवर हियर, जैसे ही मैंने फॉर्म व्यू कंट्रोल को यहाँ पे रखा उसका एक टेम्पलेट ओपन हुआ है यहाँ पे, राइट? और कुछ भी अभी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये फॉर्म व्यू कंट्रोल के साथ TBL एम्प्लॉय टेबल अटैच करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे उसका पूरा विजार्ड दिखाई देगा कि हम जब ये पेज रन करेंगे तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स कैसे दिखेंगे, राइट? वो तभी हमें पता चलेगा जब हम ये फॉर्म व्यू कंट्रोल के साथ हम TBL एम्प्लॉय टेबल को अटैच करेंगे. Now there are again 2 ways to attach the table or attach the records with this form view control. First, आप इसके लिए कोडिंग लिख सकते हो, राइट? कोडिंग का यूज करके आप अटैच कर सकते हो. एंड सेकेंड इज यू कैन ऑल्सो यूज द विजार्ड विच इज प्रेजेंट इन स्मार्ट टैग, राइट? सो ऑब्वियसली हम स्मार्ट टैग का यूज करेंगे. स्मार्ट टैग अभी ओपन है, इट्स ओवर हियर, राइट? एंड विद इन दैट द फर्स्ट over here there is an option that is choose data source. यहाँ पे एक ऑप्शन है that is choose data source. अभी आपको दिखाई दे रहा है it is none, right? So अब मैं क्या करूंगी, पहले ये जो choose data source है उसके अंदर I will open it and I will select new data source. Again I repeat, choose data source के combo box को मैंने open किया. I am selecting the option that is new data source. Let's click on it. जैसे ही मैंने न्यू डेटा सोर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया वो मुझे एक विजार्ड देगा, राइट? विजार्ड के अंदर वो मुझे पूछ रहा है कि आपके डेटा सोर्स की टाइप क्या है. ऑब्वियसली हमने SQL सर्वर डेटाबेस का यूज किया है, सो आई विल सिलेक्ट SQL डेटाबेस. जैसे ही मैंने SQL डेटाबेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसका डेटा सोर्स ID बाय डिफॉल्ट आ गया, हम उसको चेंज नहीं करेंगे. एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट? जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया वो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग पूछ रहा है.
एंड वी नो कि हमने अभी तक कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल में ऐड नहीं की है, राइट? सो ऑब्वियसली ये लिस्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम नहीं दिखाई देगा, बट वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें डेटाबेस का नेम दे रहा है, दैट इज db1.mdf, राइट? वो हमें क्या दे रहा है, db1.mdf। मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, राइट? और कनेक्शन स्ट्रिंग के प्लस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी, राइट? मैंने सिर्फ ये लिस्ट में से डेटाबेस का नेम सिलेक्ट किया था और उसने मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी है। Now over here you need to observe that this is the new thing which is present in this connection string, that is आपका डेटाबेस का नेम जो यहाँ पे दे रहा है, that is db1.mdf, उसके आगे उसने एक चीज लिखी है, that is data directory, and that is present within pipe symbol। पाइप सिंबल के बीच में उसने हमें यहाँ पे दिया, that is data directory, उसके बाद है स्लैश एंड उसके बाद लिखा है db1.mdf। Now what is the significance of this data directory? हमें पता है कि हम जब भी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हमारे एंड पे उसका फोल्डर का नेम डिफरेंट होगा, मीन्स उसका पाथ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो अभी वेबसाइट क्रिएट की है वो मेरे मशीन में डी ड्राइव पे nbj फोल्डर में एग्जाम्पल्स का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने डेटा कंट्रोल्स ex नाम की वेबसाइट क्रिएट की है और उसके अंदर बाद में हमने ये db1.mdf app_data फोल्डर में ऐड किया। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, अगर मुझे ये सेम वेबसाइट मेरे मशीन से कॉपी करके कॉलेज का जो मेरा मशीन है वहां पे मुझे रन करना है, सो मैं क्या करूंगी, ये जो फोल्डर है दैट इज डेटा कंट्रोल cx, उसको मैं कॉपी करूंगी, कॉलेज के मशीन में जो भी पाथ होगा वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगी। Now the thing is that अगर मैंने यहाँ पे attachdb फाइल नेम जो कनेक्शन स्ट्रिंग में ऑप्शन है, वहां पे अगर मैंने स्टैटिक पाथ दिया होगा, तो मुझे कॉलेज के मशीन पे जब भी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको वहां पे कॉलेज के मशीन पे web.config फाइल में जाना पड़ेगा और वहां पे मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पाथ जहां पे मैंने कॉलेज के मशीन में ये पर्टिकुलर वेबसाइट को पेस्ट किया है। बट इफ वी यूज दिस डेटा डायरेक्टरी ऑप्शन, तो हमें ऐसा कोई भी पाथ चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप पर्टिकुलर वेबसाइट का पाथ कंसीडर कर लेगा, राइट? और हमारी डेटाबेस को वेबसाइट के अंदर जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको अटैच कर देगा। So this is the significance of data directory which is written within pipe symbol in attachdb file name option, right? So ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पाथ हर बार चेंज नहीं करना है, तो आप इस हिसाब से भी आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डेटाबेस के नेम के साथ आप लिख सकते हो, राइट? ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट? जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, वो मुझे पूछ रहा है दैट वेदर आई वांट टू सेव दिस कनेक्शन स्ट्रिंग इन web.config फाइल और नॉट, राइट? यहाँ पे देखो यस चेकबॉक्स है वो ऑलरेडी चेक्ड है, मतलब मुझे ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी web.config फाइल है, दैट इज माय एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके अंदर मुझे सेव करना है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कौन से नेम से सेव होगी, इट विल बी सेव्ड विद द नेम दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट? बाय डिफॉल्ट उसने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दिया है, ऑब्वियसली मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, उसने 2 टास्क किए। फर्स्ट, उसने कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल के अंदर सेव कर दी, वो हम बाद में देख लेंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक विजार्ड दिया जिसके अंदर कनेक्शन करने के बाद डेटाबेस के साथ उसने मुझे सारे टेबल्स यहाँ पे लिस्ट आउट करके दिए। फ्रॉम दिस लिस्ट आई विल सेलेक्ट ऑब्वियसली TBL एम्प्लॉय टेबल, बिकॉज मैंने जो पेज दिया है दैट इज employee details.aspx, उसमें से मैं लूंगी TBL एम्प्लॉयज टेबल
एंड बाय डिफॉल्ट अभी एस्ट्रिक के ऊपर चेक मार्क है, मतलब वो सारी फील्ड्स डिस्प्ले करेगा, वो हम रहने देंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू एडवांस ऑप्शन। सी ओवर हियर, लास्ट जो हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट क्रिएट की थी, वहां पे ये जो चेक बॉक्सेस थे वो डिसेबल आ रहे थे, बिकॉज तब मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट दिस चेक बॉक्स एज एनेबल्ड, आपको डेटाबेस के टेबल्स के अंदर प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। उस वक्त स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने जानबूझ के प्राइमरी की सेट नहीं की थी, बिकॉज मुझे आपको ये दिखाना था कि जब भी आप प्राइमरी की सेट नहीं करोगे तो डेटा कंट्रोल्स के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होगी, राइट। लेकिन ये एग्जांपल में हमने सारे टेबल्स के अंदर प्राइमरी की सेट की है, दैट्स व्हाई ये दोनों चेक बॉक्सेस एनेबल आएंगे। देखो, फर्स्ट चेक बॉक्सेस जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स, वो अपने आप इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट्स क्रिएट कर देगा। मैं उसको चेक करती हूँ, जैसे ही मैंने उसको चेक किया, सेकंड चेक बॉक्स भी एक्टिवेट हो गया, दैट इज यूज ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी। मतलब अपडेट और डिलीट करने के लिए हमें जो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है वो एस्टैब्लिश कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होगा, राइट। मैं उसको भी चेक करती हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। मीन्स TBL एम्प्लॉय टेबल के लिए फॉर्म व्यू कंट्रोल के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट। वो मुझे टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, आई विल क्लिक ऑन टेस्ट क्वेरी। जैसे ही मैं टेस्ट क्वेरी करूंगी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो हमने 5 रिकॉर्ड ऐड किए हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश। अगेन जैसे ही मैं फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, एज यू आर एबल टू सी उसने फॉर्म व्यू का डिजाइन चेंज कर दिया, राइट। आप उसके अंदर जो भी हमारी फील्ड्स थी वो आप देख सकते हो, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, DPTNO, और उसके साथ यू आर हैविंग 3 लिंक्स, दैट इज एडिट फॉर अपडेट, डिलीट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर record, and new to create new record for our table, राइट। और उसके साथ साथ ये जो स्मार्ट टैग है, विद इन दैट यू आर एबल टू सी वन ऑप्शन, दैट इज एनेबल पेजिंग। ऑब्वियसली हम एनेबल पेजिंग को चेक करेंगे, बिकॉज हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड फॉर्म व्यू के अंदर डिस्प्ले करने हैं। सो मैंने एनेबल पेजिंग जो चेक बॉक्स है स्मार्ट टैग के अंदर, उसको मैंने चेक किया। ऑटो फॉर्मेट भी कर देते हैं ताकि डिजाइनिंग वो अपने आप कर दे। मैंने प्रोफेशनल सिलेक्ट किया है एंड आई विल क्लिकिंग ऑन ओके, राइट। सी ओवर हियर, आप ये देख सकते हो कि उसने पूरा फॉर्मेटिंग भी इसको कर दिया, राइट। सो दिस इज द वे स्टूडेंट्स कि आप कैसे फॉर्म व्यू कंट्रोल के साथ आपका जो टेबल है वो आप अटैच कर सकते हो, और अगर कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल में नहीं है तो भी आप उसको web.config फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग कि आप कैसे फॉर्म व्यू कंट्रोल के अंदर ऑटो फॉर्मेट और पेजिंग कर सकते हो, अलोंग विथ एडिट, डिलीट एंड न्यू लिंक, जो अपने आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी जनरेट कर देगा, राइट। और हमें वो फैसिलिटी हम एग्जीक्यूट करेंगे ये पेज, तब हमें वो प्रोवाइड करेगा। नाउ द थिंग इज दैट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक बैक बटन रखूंगी, बिकॉज मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे default.aspx पेज के ऊपर जाना है। आइदर वी कैन प्लेस बैक बटन और वी कैन ऑल्सो प्लेस हाइपरलिंक। हम यहाँ पे दोनों में से एक कंट्रोल यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे हाइपरलिंक प्लेस कर देती हूँ, राइट। हाइपरलिंक के अंदर प्रॉपर्टी विंडो में आई एम राइटिंग टेक्स्ट एज बैक, राइट। और नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में मैं सेट कर देती हूँ default.aspx पेज एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, राइट। सो मैं ये बैक बटन, बैक लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे default.aspx पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देगा, राइट। सो our task for this employee details.aspx page is completed. सो हम इसको क्लोज करते हैं, राइट। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पेज ओपन करते हैं, दैट इज insert dpt.aspx. insert dpt.aspx. Now what I want to do,
इंसर्ट dpt.aspx पेज के ऊपर हम दूसरा डेटा कंट्रोल लेंगे, राइट, एंड आई विल सिलेक्ट द डेटा कंट्रोल एज डिटेल्स व्यू कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, मैंने डेटा कंट्रोल सिलेक्ट किया, दैट इज डिटेल्स व्यू कंट्रोल. मुझे क्या करना है, डिटेल्स व्यू कंट्रोल का यूज करके मुझे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं और उसके साथ साथ मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है. सो अगेन द सेम स्टेप्स. हम क्या करेंगे, डिटेल्स व्यू कंट्रोल का स्मार्ट टैग ओपन करेंगे. स्मार्ट टैग के अंदर चूज डेटा सोर्स के अंदर ओपन करके वी विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, राइट. मैंने न्यू डेटा सोर्स को सिलेक्ट किया. डेटा सोर्स टाइप आई एम सिलेक्टिंग एज SQL डेटाबेस. डेटा सोर्स का ID आ गया. आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, सॉरी, ओके. नाउ सी ओवर हियर, हमें अब यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का लिस्ट है, अब मुझे यहाँ पे db1.mdf नहीं दिखाई दे रहा है, बट instead of that I am able to see the name of my connection string, that is connection string, जो हमने चेंज नहीं किया था. मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या था जो हमने web.config फाइल के अंदर सेव की थी, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग. आई विल सिलेक्ट इट, राइट. कनेक्शन स्ट्रिंग को देखेंगे, इट इज एज इट इज जो हमने सेव की थी. नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसने TBL DEPT टेबल को सिलेक्ट किया है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टेबल विद इन अवर डेटाबेस. एस्ट्रिक के ऊपर भी सिलेक्ट है, मतलब वो सारी फील्ड्स को वो डिस्प्ले करेगा, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन. यू आर एबल टू सी ओवर हियर सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रही है. नाउ आई विल क्लिक ऑन एडवांस्ड. ऑब्वियसली एडवांस के अंदर हम जनरेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट्स करेंगे, कॉन्करेंसी भी करेंगे एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट. मतलब ये डिटेल्स व्यू कंट्रोल के लिए भी, हमारे TBL DEPT टेबल के लिए भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी जनरेट हो जाएगी. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. वी विल सिलेक्ट टेस्ट क्वेरी, right. We are able to see our department records. We have added 3 records within our database. So वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. And now I will click on finish. Now see over here. What is the difference between form view control and details view control? Form view control के अंदर जैसे ही मैंने finish बटन के ऊपर क्लिक किया था, हमने insert, update, delete query को generate किया था. वो एडवांस बटन का यूज करके उसने बाय डिफॉल्ट फॉर्म व्यू कंट्रोल के अंदर हमें एडिट, डिलीट और न्यू की लिंक प्रोवाइड कर दी थी, राइट. लेकिन यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक वो लिंक प्रोवाइड नहीं की है बिकॉज द नेम ऑफ द कंट्रोल इज डिटेल्स व्यू. उसकी बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी क्या है कि वो सिर्फ डिटेल रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा इन टेब्यूलर फॉर्मेट. देखो आप यहाँ पे देखोगे तो उसने डिजाइनिंग भी अच्छी तरह से की है. टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर आप रिकॉर्ड मींस फील्ड्स देख सकते हो. और उसके साथ साथ उसने हमें यहाँ पे स्मार्ट टैग के अंदर हमें चेक बॉक्सेस दिए है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, राइट. दैट इज पेजिंग, इंसर्टिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग. It is because default functionality of details view control is to display the record. But उसके साथ साथ अगर आपको पेजिंग करना है, इंसर्ट करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है, वो भी आप कर सकते हो, राइट. बिकॉज दैट इज नॉट द डिफॉल्ट फंक्शनलिटी ऑफ डिटेल्स व्यू कंट्रोल. लेकिन जब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स पेज के ऊपर जब ये फॉर्म व्यू कंट्रोल को प्लेस किया था, उसने बाय डिफॉल्ट ये लिंक्स हमें प्रोवाइड कर दी थी. सी द डिफरेंस बिटवीन द डिजाइनिंग ऑफ द टू कंट्रोल. देखो यहाँ पे जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है, एज द नेम सेज, वो फॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट इंसर्ट की फैसिलिटी वो देगा, राइट. सो ओवर हियर सी टेब्यूलर फॉर्मेट नहीं है, एम्प्लॉय नंबर, कॉलन और उसके साथ उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी. लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और सेकेंड कॉलम में उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी इन टेब्यूलर फॉर्मेट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन ऑफ फॉर्म व्यू कंट्रोल एंड डिटेल्स व्यू कंट्रोल. स्मार्ट टैग के अंदर हम ऑटो फॉर्मेट भी कर देते हैं, इसको भी मैं प्रोफेशनल ही सिलेक्ट करूंगी एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सी यहाँ पे भी मैंने प्रोफेशनल सिलेक्ट किया है
और डिटेल्स व्यू कंट्रोल के लिए भी मैंने प्रोफेशनल सिलेक्ट किया है, बट उसमें भी डिफरेंस है। देखो ये जो फील्ड के नेम्स है वो बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं, बट इन फॉर्म व्यू कंट्रोल इट इज एज इट इज, राइट। सो डिजाइनिंग के साथ साथ डिफॉल्ट फंक्शनलिटी के साथ साथ जो फॉर्मेटिंग हो रहा है उसमें भी डिफरेंस है, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्स व्यू कंट्रोल। हम यहाँ पे एक हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस करते हैं और हाइपरलिंक कंट्रोल के अंदर हम एक और पेज कनेक्ट करते हैं, दैट इज dpt details.aspx। सो हाइपरलिंक कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई एम गिविंग इट एज डिपार्टमेंट details, right? And within navigate URL property, I am connecting the page that is dptdetails.aspx. It's over here and I will click on OK. So मैंने यहाँ पे OK बटन पे क्लिक किया। So ये जो लिंक है वो क्रिएट हो गई, that is departmentdetails.aspx। लेकिन उसके साथ साथ हमें बैक की जो हाइपरलिंक है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट ASPX पेज के ऊपर ऑलरेडी बैक लिंक है, उसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, राइट। सो मैंने जो हाइपरलिंक कंट्रोल था एम्प्लॉय डिटेल्स पेज के ऊपर जो बैक डिफॉल्ट डॉट ASPX के साथ कनेक्ट होता था वो भी मैंने हाइपरलिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी। ऑलराइट, अब हमें ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट डिटेल्स पेज को डिजाइन करना पड़ेगा। सो ये दोनों पेजेस में अभी क्लोज कर देती हूँ and I will open department details.aspx page. It's over here, right? मैंने open किया department details.aspx page. Now ये पेज के ऊपर we will use data list control from data tab of toolbox, right? So data tab के अंदर से I will place data list control, right? As the name says, वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको हॉरिजॉन्टल मैनर में लिस्ट चाहिए या फिर वर्टिकल मैनर में लिस्ट चाहिए, राइट। लेकिन ये डेटा कंट्रोल का काम इतना है कि आपको ये लिस्ट के मतलब जो उसका अपीयरेंस होगा वो जैसे वो रिप्रेजेंट करेगा डेटा को, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट। सो अगेन द सेम प्रोसीजर, राइट। हमें क्वेरी नहीं लिखनी है, सो ऑब्वियसली फ्रॉम द स्मार्ट टैग वी विल सिलेक्ट चूज डेटा सोर्स। उसका कॉम्बो बॉक्स ओपन करेंगे, न्यू डेटा सोर्स, SQL डेटाबेस, डेटा सोर्स का आईडी आ गया। आई विल क्लिक ऑन ओके। आई विल सिलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग and the name of my connection string is as it is, that is connection string. Our connection string is over here. Next, ऑब्वियसली मुझे कौन से टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, TBL DPT, सो वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, एस्ट्रिक भी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे आ गई। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। मुझे अभी इसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज मुझे इसके ऊपर सिर्फ डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। सो मैं इसमें से कोई भी बटन का यूज नहीं करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। टेस्ट क्वेरी, obviously it will give me 3 records of my department, that is TBL DPT table, and I will click on finish, right। See over here, जैसे ही मैंने finish बटन के ऊपर क्लिक किया उसने vertical manner में by default in terms of list, right, that is one below the other, उसने मुझे सारे records वो मुझे इस हिसाब से वो डिस्प्ले करके देगा, राइट। इसको हम ऑटो फॉर्मेट सेट कर देते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। आई हैव टेकन सैंड एंड स्काई एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट। सो वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे हो गया है। बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे ये डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर हम वर्टिकल मैनर में ही लिस्ट रहने देते हैं, बिकॉज एक और पेज है जिसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल मैनर में डेटा लिस्ट कंट्रोल को डिस्प्ले करके देखेंगे। तो अभी इसकी जो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है दैट इज वर्टिकल मैनर, हम इसको ही रहने देते हैं, राइट। लेट्स क्लिक ऑन बैक, मतलब बैक बटन की लिंक रख देते हैं, बट ओवर हियर बैक बटन हमें कहाँ पे नेविगेट करवाना है, लेट्स नेविगेट इट टू insert details.aspx पेज, बिकॉज हम ये dpt details.aspx पेज के ऊपर कहाँ से आए, insert details.aspx पेज के ऊपर से आए।
तो हम यहाँ पे एक हाइपरलिंक कंट्रोल रखते हैं, राइट। हाइपरलिंक कंट्रोल के अंदर आई विल सेट द पेज नेम एज इंसर्ट डीपीटी, मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिखती हूँ इंसर्ट डीपीटी, राइट। और पेज में कनेक्ट करती हूँ इंसर्ट डीपीटी डॉट ASPX, it's over here, and I'm clicking on OK, right. So the designing for this dpt details.aspx page is also completed. ये पेज के ऊपर हमने कौन सा कंट्रोल देखा? We have seen data list control. Again I repeat, we have seen data list control, जो लिस्ट के टर्म्स में हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करके देगा. लिस्ट कैन बी उसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है? आइदर इट कैन बी वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल. बाय डिफॉल्ट इसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल, सो वैसे ही हम यहाँ पे रहने देते हैं, राइट. लेट्स क्लोज दिस पेज. Now the next page that I will design is get.emp.aspx page, right. As the name says, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना है, राइट. मुझे क्या फंक्शनैलिटी करनी है? गेट emp.aspx पेज के ऊपर मैं यूजर के पास से डिपार्टमेंट नंबर लूंगी, that is as an input, and the department number that is entered by the user, अकॉर्डिंग टू दैट मैं दूसरे पेज के ऊपर, राइट, दैट इज ऑन employeinfo.aspx पेज, मैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स में डिस्प्ले करूंगी. मतलब मुझे गेट emp दैट इज ऑन दिस पेज, ये पेज के ऊपर मुझे डिपार्टमेंट नंबर गेट करना है, दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होना है, और वो दूसरे पेज के ऊपर मुझे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज डिस्प्ले करने हैं, राइट. सो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिजाइनिंग करना पड़ेगा. डिजाइनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे div टैग के अंदर कर्सर रखा. आई एम राइटिंग एंटर डिपार्टमेंट नंबर, राइट. मैंने यहाँ पे लिखा एंटर डिपार्टमेंट नंबर, और उसके साथ साथ मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर देती हूँ, राइट. टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ txtno, राइट. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस करती हूँ, राइट. बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ गेट, एंड आईडी प्रॉपर्टी उसकी सेट करती हूँ मैं btn get, राइट. ऑब्वियसली मुझे ये गेट बटन के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करना है, सो उसकी क्लिक इवेंट में ओपन करूंगी, राइट. क्लिक इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी कि जिसके ऊपर से मैं दूसरे पेज के ऊपर दैट इज employeinfo.aspx पेज के ऊपर नेविगेट कर सकती हूँ. बट अलोंग विद दैट मैं क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर ये जो डिपार्टमेंट नंबर हमने गेट किया है वो भी मैं पास करूंगी, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल राइट ओवर हियर response dot redirect within parenthesis double quotation. First we need to write the name of our page, that is employeinfo.aspx, right. employeinfo.aspx मैंने अपने पेज का नेम दे दिया जहां पे मुझे नेविगेट होना है. Now we need to pass department number which is given by the user to this page. So उसके लिए मुझे query string बनानी पड़ेगी. So query string के लिए first I need to write question mark. After question mark, I will write DNO is equal to, that is department number मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया और डबल कोटेशन ओवर कर दिया, बिकॉज मुझे जो वैल्यू लानी है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में से लानी है. सो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दी. अब मैं एम्परसेंड का यूज करूंगी, दैट इज फॉर कॉन्केटिनेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट txtno.text, that is the name of our text box and its text property, right. So वो क्या करेगा? URL के अंदर employeinfo.aspx के साथ एक query string फॉर्म करेगा, और वो query string के अंदर वेरिएबल का नेम है DNO, और उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? That is from this text box which we have already kept on our page, that is txtno, और उसकी हमने text property का यूज किया, right. So this is the thing कि आप कैसे पेज के साथ साथ क्वेरी स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हो. ये हमने ऑलरेडी yesterday के लेक्चर में हमने देखा था, राइट. ऑलराइट, सो इसका
कोडिंग कंप्लीट हो गया, हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमें बैक हाइपरलिंक रखनी पड़ेगी ताकि हम डिफॉल्ट पेज के ऊपर नेविगेट कर पाए, राइट। सो मैंने यहाँ पे वहां पे कॉपी की थी हाइपरलिंक, सो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। बैक हाइपरलिंक को मैंने सिलेक्ट किया, देखो प्रॉपर्टी विंडो में आप देखोगे तो default.aspx पेज वो कनेक्टेड है, राइट। सो ये get emp.aspx के पेज की डिजाइनिंग यहाँ पे ऑब्वियसली डिजाइनिंग एंड कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, राइट। ओके, अब हमें दूसरा पेज कौन सा डिजाइन करना है, दैट इज employee.info.aspx पेज, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इट्स 9:55, सो हम ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, राइट। सो वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर, और दूसरी मीटिंग की लिंक है जो 10 o'clock की लिंक है, हम उसके साथ दूसरे लेक्चर में हम कनेक्ट होंगे।